گا میں خدا ہوں، میں خدا کو نہیں جانتا ہوں، لیکن تو ثابت قدم نہ رہا بلکہ تو نے بدکاری کی اور سخت تکبر کے الفاظ اپنے منہ سے، ناپاک منہ سے حق تعالیٰ کے خلاف ادا کیے۔ یسوع مسیح کے پاک نام میں آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزو، میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں اس اچھے اور بھلے وقت کے لیے جس میں ہمارے خداوند نے یہ ممکن کیا کہ ہم آخری زمانے میں حنوک کی کتاب کو پڑھ سکیں، سمجھ سکیں۔ ہمارا ٹاپک تھمبنیل پر آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے ٹاپک شروع کیا ہوا کہ کتاب مقدس اور حنوک کی کتاب۔ انٹرنیٹ پر آپ کو بہت ساری ویڈیو جو ہے وہ ملتی ہیں یا مل جائیں گی حنوک کی کتاب کے بارے میں، اردو انگلش میں، لیکن ہم نے تھوڑا الگ سے اس کو سٹارٹ لیا ہے کہ بائبل مقدس کیا حنوک کے بارے میں کچھ بیان کرتی ہے، یا حنوک کی جو کتاب ہے یہ بائبل مقدس کے ساتھ ملتی ہے یا کہ نہیں۔ تو ابھی تک ہمارے 4 جو پیغام ہیں وہ ہو چکے ہیں اور آج اس پر ہمارا 5واں پیغام ہے۔ تو آئیے، اور اس کے ساتھ ہمارا چیپٹر جو ہے یہ بھی حنوک کی کتاب میں سے 5واں چیپٹر ہے جس کو آج میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ 5واں باب یہاں سے شروع ہوتا ہے، سوچ اور دھیان لگا کیسے درخت ہرے پتوں سے ملبوس ہیں اور پھل لاتے ہیں، اور اس لیے سمجھ اور فہم پا کہ وہ جو عبدالآباد زندہ ہے اس نے کیسے یہ سب تیرے لیے بنایا ہے، اور کیسے اس کے سب کام اس کے آگے ہمیشہ سال بہ سال وقوع ہوتے ہیں، اور اس کے سب کام اس کی پیروی کرتے ہیں اور بدلتے نہیں، بلکہ اسی طرح جیسے خدا نے مقرر کیا ہے سب کچھ ہوتا ہے، اور متوجہ ہو کیسے سمندر اور دریا اپنا کام پورا کرتے ہیں۔ اور آگے 4 آیت میں لکھا ہے، لیکن تو ثابت قدم نہ رہا اور نہ خدا کے احکام کو مانا، بلکہ تو نے بدکاری کی اور سخت تکبر کے الفاظ اپنے منہ سے، ناپاک منہ سے حق تعالیٰ کے خلاف ادا کیے۔ اے سخت دل، تو سلامتی نہ پائے گا، اور اسی سبب تو اپنے دنوں پر لعنت کرے گا اور اپنی زندگی کے سالوں کو برباد کرے گا، اور ابدی لعنت تجھ پر بڑھے گی اور تو رحم نہ پائے گا۔ ان ہی ایام میں تیرا نام سب راست بازوں کے لیے ابدی لعنت کا نشان ہوگا، اور وہ تجھ بدکار پر ہمیشہ لعنت کریں گے۔ اور 7ویں آیت سے لکھا ہے، اور چنے ہوئے ہوں کے لیے وہاں نور ہوگا اور مسرت اور سلامتی ہوگی، اور وہ زمین کے وارث ہوں گے، لیکن تجھ ناپاک کے لیے وہاں لعنت ہوگی۔ جب چنے ہوئوں کو حکمت عطا ہوگی تو وہ جئیں گے اور پھر خطا نہ کریں گے، نہ بھول سے اور نہ تکبر سے، بلکہ وہ صاحب حکمت حلیم ہوں گے، اور وہ پھر گناہ نہ کریں گے، اور پھر ان کی عدالت نہ ہوگی، اور وہ عذاب اور قہر سے ہلاک نہ ہوں گے، بلکہ اپنی زندگی کے ایام پورے کریں گے، اور ان کی سلامتی بڑھے گی، اور ان کی خوشی کے سال شادمانی اور ابدی سلامتی میں بڑھیں گے، اور خوشی سے ان کی زندگی کے سارے دن سرشاد ہوں گے۔ خداوند ہمیں اس کی سمجھ بخشے۔ میرے عزیزو، 5واں باب میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اور نہایت ہی دلچسپ باتیں اس کے اندر موجود ہیں، اور یہاں سے بتانا چاہتا ہوں کہ جب اس کے بعد ہم 6واں باب پڑھیں گے تو وہ ڈائریکٹ ہمیں فرشتوں کے بارے میں آگاہی دینے والا ہے۔ تو ضرور ان پیغامات کے ساتھ جڑے رہیے، ان کو سنتے رہیے اور سمجھتے رہیے۔ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو 5واں باب ہے یہ پچھلے 4 جو پیغام گزرے ہیں ان ہی کا یہ ایک تسلسل ہے۔ پچھلے پیغام میں نے بتایا تھا یہاں پر جو الفاظ سٹارٹ ہوتے ہیں وہ ہے سوچنے کے تعلق سے اور دھیان لگانے کے تعلق سے۔ سوچنا ہے اور دھیان لگانا ہے۔ اور پیچھے جو ہم نے پڑھا تھا وہ 14 درختوں کے بارے میں پڑھا تھا کہ جو 2-3 سال تک جن کے پتے نہیں گرتے، ان کو ہم نے جا کر دیکھا کہ یہ صادقوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ آسمانوں پر ہم نے دیکھا کہ یہ خاص وہ 14 بڑے فرشتے ہیں جن کو اس لوسیفر کو ان کے ساتھ جوڑا گیا، لبنان کے دیودار کے ساتھ جوڑا گیا، سرو کے ساتھ جوڑا گیا، اور بائبل سے ہم نے ان باتوں کو دیکھا تشبیہات کے اندر کہ صادق زیتون کے پتوں کی مانند ہے، صادق کھجور کی مانند ہے، صادق ہمیشہ سرسبز رہتے ہیں۔ تو
صادق اور شریر دو طرح کے پارٹ مطلب اس میں چلیں گے یا چل رہے ہیں کہ خدا کی جو مخلوقات ہے، اس کے جو لگائے ہوئے درخت ہیں، جو سمندر ہے، جو دریا ہے، وہ تو آج بھی اپنی جگہ پر قائم ہے، پر تو کیسے بدل گیا ہے، اس کا مدعا پھر سے آج وہی ہے۔ اور چوتھی جو آیت ہے اس سے آگے میں آج خاص باتیں آپ کے لیے کرنا چاہتا ہوں، بائبل کو اور ہنوک کی کتاب کو یہاں سے دکھانا چاہتا ہوں۔ چوتھی آیت کے اوپر جو ایک ٹائٹل دیا گیا ہے وہ بے دین ہے، اور 7ویں آیت کے اوپر جو ٹائٹل دیا گیا ہے وہ دیندار ہے۔ دو باتیں اس کے اندر موجود ہیں، بے دین اور دیندار۔ جب بے دین کی بات کریں گے تو ہمیں نئے عہد نامے کے اندر ایک بے دین کا ذکر ملے گا، ایک بے دین ظاہر ہونے والا ہے۔ جی ہاں، ایک بے دین ظاہر ہونے والا ہے، جس کو اسلام کی نگاہ سے یا ان کے پوائنٹ آف ویو سے دجال کے نام سے کہا جاتا ہے، بائبل کے مطابق اسے اینٹی کرائسٹ کہا جاتا ہے یا مخالف مسیح کہا جاتا ہے۔ وہ جو مخالفت کرتا ہے، وہ جو مخالف ہے، وہ جو خدا کے مخالف ہے، وہ جو اس کی مخلوقات کے مخالف ہے، وہ ظاہر ہونے والا ہے۔ اس کی روح، اس کا اثر تو یوحنا نے اپنے خط میں لکھا تھا کہ آج بھی موجود ہے، لیکن ایک حیوان کی صورت میں، ایک سسٹم کی صورت میں وہ دوبارہ سے نمودار ہونے والا ہے۔ تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جن وقتوں میں یہ پیغام ریکارڈ ہو رہا ہے وہ وقت آ چکا ہے، وہ بے دین آ چکا ہے، وہ خدا کے خلاف جو تھا وہ آ چکا ہے۔ آج ہر چیز بگڑی ہوئی ہے اور بگڑتی چلی جا رہی ہے۔ خدا کے خلاف ہر چیز اپنے آپ کو خدا کے خلاف لے کر جا رہی ہے، سرکشی کر رہی ہے۔ تو یہاں سے پہلی جو چوتھی بے دین کے بارے میں جو پہلے الفاظ لکھا ہے، لیکن تو ثابت قدم نہ رہا۔ یہ خاص الفاظ ہیں، ثابت قدم رہنا، اپنے آپ میں قائم رہنا، تو ثابت قدم نہ رہا۔ بائبل مقدس ثابت قدم کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ سلیمان کا ایک ریفرنس میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، پہلا تواریخ ہے، اس کا 28واں باب ہے، پہلا تواریخ 28واں باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، اور اس نے مجھ سے کہا کہ تیرا بیٹا سلیمان میرے گھر اور میری بارگاہوں کو بنائے گا، کیونکہ میں نے اسے چن لیا ہے کہ وہ میرا بیٹا ہو اور میں اس کا باپ ہوں گا۔ اور 7ویں آیت میں لکھا ہے، اگر وہ میرے حکموں اور فرمانوں پر عمل کرنے میں ثابت قدم رہے، میرے حکموں اور فرمانوں۔ تو یہی بات یہاں سیم لکھی ہے چوتھی آیت میں، لیکن تو ثابت قدم نہ رہا اور نہ خدا کے احکام کو مانا۔ یہی شرط خدا سلیمان کے بارے میں سٹیٹمنٹ دیتا ہے، یہی آپ کے بارے میں دیتا ہے، یہی میرے بارے میں دیتا ہے۔ کوئی بھی شخص اگر خدا کے حکموں پر قائم نہیں رہتا اور ثابت قدم نہیں رہتا، وہ گرا دیا جاتا ہے، وہ بے دین ہو جاتا ہے۔ آج کے زمانے میں یہ اسپرٹ نہایت تیزی سے کام کر رہی ہے۔ دانیل نے کہا تھا وہ شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گا۔ آج کے زمانے میں لوگوں نے شریعت کو بگاڑا، لوگوں نے شریعت کو، خدا کے احکامات کو بدلا اور اپنی طرف سے کچھ ہدایات جاری کی کہ آپ ایسا کرو گے۔ بتانا چاہتا ہوں، ثابت قدم آپ نے اور میں نے خدا کے حکموں پر عمل کر کے رہنا ہے۔ تو یہاں پر سلیمان کے لیے لکھا، اگر وہ میرے حکموں اور فرمانوں پر عمل کرنے میں ثابت قدم رہے جیسا آج کے دن ہے، تو میں اس کی بادشاہی ہمیشہ تک قائم رکھوں گا۔ تو یہ ہمیشہ تک قائم نہیں رہا کیونکہ یہ ثابت قدم نہیں رہا۔ آگے بتانا چاہتا ہوں، ایوب کی کتاب سے، ایوب کہتا ہے 17ویں باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، تو بھی صادق اپنی راہ میں ثابت قدم رہے گا، اور جس کے ہاتھ صاف ہیں وہ زور آور ہی ہوتا جائے گا۔ اس کے ہاتھ صاف نہ رہے، یہ آلودہ ہوا۔ اور رومیوں کا 2 باب خاص بات کہتا ہے، 2 باب اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، جو نیکوکاری اور ثابت قدم رہ کر جلال اور عزت اور بقا کے طالب ہوتے ہیں، ان کو ہمیشہ کی زندگی دے گا۔ تو ثابت قدم رہنے سے ہی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور اس کو آگے جا کر میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں، اس کے بارے میں بدکار لفظ یوز کیا گیا ہے کہ تو بدکار نے یہ کیا ہے۔ آگے لکھتا ہے، آگے اس کے بارے میں پڑھتا ہوں، لکھا ہے، خدا کے احکام کو نہ مانا بلکہ تو نے بدکاری کی، اور بدکاری کیا کی؟ اور سخت تکبر کے الفاظ اپنے ناپاک منہ سے حق تعالیٰ کے خلاف ادا کیے۔ اے سخت دل، تو سلامتی نہ پائے گا۔ میں آپ کو بائبل سے یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سخت الفاظ اس نے ادا کیا اپنے منہ سے، وہ کون سے تھے؟
आइए मेरे साथ देखिए यशायाह की किताब में से उसका 14वां बाब उसकी 12 नंबर आयत में आपके लिए पढ़ता हूं। ऐ सुबह के रोशन सितारे, ऐ सुबह के रोशन सितारे, तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा? ऐ कौमों को पस्त करने वाले, तू क्यों कर जमीन पर पटका गया? तू तो अपने दिल में कहता था, क्या यही हनूक कह रहा है, तूने सख्त तकब्बर के अल्फाज अपने मुंह से निकाले। तू तो अपने दिल में कहता था मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा। ये सख्त अल्फाज हैं। लिखा है मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा और मैं शुमाली अतरा में जमात के पहाड़ पर बैठूंगा। मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा। मैं खुदा ताला की मानिंद हूंगा, लेकिन तू पताल में गड़े की तह में उतारा जाएगा। तो मेरे अजीजों, ये थे वो सख्त अल्फाज जिनकी वजह से ये बदकार हुआ, जिनकी वजह से ये लानती हुआ और इसका दिल सख्त हुआ। मैं आपको दिखाना चाहता हूं इस जमीन के ऊपर, आप फिरौन की तरफ जाइए, मिस्र के अंदर जाइए, उसका दिल सख्त हो गया, मैं जाने नहीं दूंगा। इबलीस और फिरौन एक ही जगह पर खड़े, उसका दिल सख्त हो गया, मैं जाने नहीं दूंगा। मैं खुदा हूं, मैं खुदा को नहीं जानता हूं। खुदा कौन है? यही अल्फाज लूसीफर के थे, यही अल्फाज जमीन पर नमरूद के थे, यही अल्फाज जमीन पर फिरौन के थे, यही अल्फाज नबूकदनजर के थे। ये बाबल अजीम मेरी तवानाई से बना है, ये मेरी पावर से बना है। ये वो तकब्बर के अल्फाज हैं जो बदकारी पैदा करते हैं या खुदा के खिलाफ कुफर बकते हैं। और यही काम इसने किया और यही काम आज बहुत सारे लोग कर रहे हैं। खुदा के खिलाफ कुफर बकते हैं, खुदा के खिलाफ अपने आप को खड़ा कर लेते हैं। हनूक की किताब का पैगाम वाज़े है, साफ है, बाइबल के साथ मिल रहा है। और इसके आगे लिखा है और इसी सबब तू अपने दिनों पर लानत करेगा और अपनी जिंदगी के सालों को बर्बाद करेगा। अबदी लानत तुझ पर बढ़ेगी और तू रहम ना पाएगा। इन्हीं अय्याम में तेरा नाम सब रास्तबाजों के लिए अबदी लानत का निशान होगा और वो तुझ बदकार पर हमेशा लानत करेंगे। क्या ऐसा हो सकता है हमेशा तक लानत करना? क्या ऐसा हो सकता है कि वो लोगों के लिए इबरत का निशान बन जाए? जी हां, बाइबल से साबित है। सदूम अमूरा बर्बाद हुए, वो आज तक इबरत का निशान है। लूत की बीवी आज तक नमक का खंबा बन गई, लोगों के लिए इबरत का निशान है। जब भी कोई उसके बारे में ख्याल करता है, अच्छा कमेंट नहीं देता है, दिल में उसके बारे में नेगेटिव बात आती है, आप नहीं यकीन आता है। जिसको यस्सु ने जमीन पर शैतान कहा था, मैं यहूदा इस्करियोती की बात कर रहा हूं, मुझे बताइए आप उसके बारे में कितने अच्छे कमेंट देते हैं। जब से वो खुदावंद को उसने छोड़ा, खुदावंद का उसने सौदा किया, उस वक्त से लेकर आज के दिन तक, रहती दुनिया तक, अगली जिंदगी के अंदर उसका नाम अच्छे अल्फाज में नहीं आने वाला है, उसकी तारीफ होने वाली नहीं है, क्योंकि उसने खुदावंद का सौदा किया है। उसने खुदावंद के खिलाफ पैसे को ज्यादा प्रमोट किया, उसने पैसे को अजीज रखा, जिंदगी के मालिक को रद्द कर दिया। इसने भी हनूक की किताब के मुताबिक इस बदकार ने भी अपनी बादशाहत कायम करना शुरू की है, खुदा के ताबे रहना पसंद नहीं किया। आज भी बहुत सारे लोग खुदा के ताबे नहीं है, खुदा के अहकामात को मानते नहीं है। पर हेज़िकेल ने हमें बताया था कि खुदा हमें, हेज़िकेल की किताब में 18वें बाब की 31 आयत के अंदर, खुदा नया दिल देता है, खुदा नई रूह देता है और क्या करवाता है? अपने अहकामात की पैरवी करवाता है। और जब तक इबलीस का दिल इंसान के अंदर होता है, खुदा के हुक्मों के खिलाफ वो चलता है, खुदा के खिलाफ चलता है, उसकी बातों के खिलाफ चलता है और बदकारी करता है। मैं अगली बात बताना चाहता हूं जो दीनदारों के बारे में लिखी है। 7वीं आयत में लिखा है चुने हुओं के लिए वहां नूर होगा, चुने हुओं के लिए वहां नूर होगा। जी हां, जिस नूर की हनूक बात करता है वो कोई नूर और नहीं है, वो मिसाया है, वो हमारा खुदावंद है, वो इसराइल का कदूस है, वो हमारा यस्सु है। उसने दावा किया इस जमीन पर आकर, जब तक मैं दुनिया में हूं, दुनिया का नूर हूं। जी हां, मेरा यस्सु नूर है। ज़बूर की किताब में दाऊद कहता है यहोवा ही खुदा है और उसने हमें नूर बख्शा है। यूहन्ना कहता है कि हकीकी नूर जो दुनिया में आने को था, और आगे लिखता है वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई। ये वो नूर है जो बुजुर्ग हनूक ने देखा। नूर वहां पर होगा और मुसरत और सलामती होगी। जी हां, हमारे यस्सु की वजह से सलामती मौजूद है, वो सलामती का शहजादा है। और इससे अगली बात जो हमारे खुदा उनके मुंह से निकली,
बुजुर्ग हनूक कहते हैं इसके अगली बात में, लिखे और वो जमीन के वारिस होंगे। हाँ, वो जमीन के वारिस होंगे। आपको याद होगा हमारे निजात दीनदा यीशु मसीह ने कहा था, मैं आपके लिए पढ़ता हूं मत्ती की इंजील में से, मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब उसकी 30वीं आयत में लिखा है, मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं। मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। और फिर लिखता है मुबारक है वो जो गमगीन है, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। और 5वीं आयत में मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। तो बुजुर्ग हनूक यही तो कह रहे थे कि जिनके पास नूर होगा उनके पास सलामती होगी, उनके पास खुशी होगी, और वही जमीन के वारिस होंगे। आपको समझ में आना चाहिए, हनूक की किताब बता रही है कि सादिक जो हैं, जो चुने हुए हैं, वो जमीन के वारिस होंगे। हमारे यीशु मसीह ने भी यही कहा था, वो जो हलीम है वो जमीन के वारिस होंगे। और फिर आगे लिखा है, लेकिन तुझ नापाक के लिए वहां लानत होगी। कहां पर? जमीन पर। आज उसके लिए लानत है। आज वो बरकत तो नहीं ले रहा है, ना उसके लिए बरकत मौजूद है, वो लानत के अंदर है। लेकिन हम यहां पर सलामती के अंदर हैं, हम नूर के साथ हैं। लेकिन अगली बात बताना चाहता हूं, ये उस वक्त की बात है जिसको 1000 साला बादशाही कहा जाता है। 1000 साला बादशाही के अंदर लानत ना होगी, लानत नहीं होगी, क्योंकि सारी लानत लेकर इसको अथाह गड्ढे के अंदर बंद कर दिया जाएगा। और वहां पर नूर होगा, वहां पर सलामती होगी, वहां पर खुशियां ही खुशियां होंगी। लानत उसके हिस्से में जाएगी और खुशियां और मुसरत हमारे हिस्से में आएंगी, सलामती हमारे हिस्से में आएगी, नूर हमारे हिस्से में आएगा। नए यरूशलेम को पढ़िए, जाकर 21वां 22वां बाब पढ़िए, वहां पर सूरज की चांद की कुछ रोशनी की हाजत नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर बर्रा ने, वो बर्रा उसका चिराग है, वो रोशनी है, वो लाइट है, उसने उसे मुनव्वर कर रखा है। हालेलुया। अगली आयत पढ़ता हूं, लिखा है जब चुने हुओं को हिकमत अता होगी तो वो जिएंगे और फिर खता ना करेंगे, ना भूल से और ना तकब्बर से, बल्कि वो साहिबे हिकमत हलीम होंगे। आमीन। हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि जब हम खुदावंद के साथ होंगे वहां पर कभी दोबारा कोई खता नहीं होगी, ना कोई तकब्बर करेगा, बल्कि सारे हलीम होंगे। आपको बाइबल से एक शख्स मिलेगा जिसका नाम बुजुर्ग मूसा है। पुराने अहदनामा के अंदर मेरे सारे खानदान के अंदर वो हलीम है। और यीशु मसीह हमारे नए अहदनामा के अंदर सबसे बड़े हीरो जो हलीम हैं, जिन्होंने अपने आप को दिखाया, अपना बोझ मुझ पर डाल दो, मेरा जुआ मुलायम है क्योंकि मैं हलीम हूं। वो हलीम है, और जैसा यीशु होगा वैसे उसके लोग होंगे। प्रेज द लॉर्ड। और अगली आयत में लिखा है और वो फिर गुनाह ना करेंगे और फिर उनकी अदालत ना होगी। जी हाँ, जो मसीह यीशु में होंगे, ये बाइबल से मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जो मसीह यीशु में हैं उनकी क्या अदालत होगी? क्योंकि उनकी अदालत हो चुकी है, यीशु मसीह के वसीला से उनकी अदालत हो चुकी है। अब उनके लिए कोई सजा नहीं है। ये बाइबल से मैं आपको 3 रेफरेंस दूंगा कि जहां पर आप देखेंगे कि जो चुने हुए हैं उनकी अदालत हो चुकी, क्योंकि गुनाह का सबब यह है कि नूर दुनिया में आया और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। बताना चाहता हूं, मैं पहले भी कई पैगामों में कह चुका हूं कि अब जो सजा लोगों को मिलने वाली है वो सिर्फ यीशु मसीह के कफारे पर ईमान ना लाने की वजह से है, अब उसको कबूल ना करने की वजह से है, अब उसकी पैरवी ना करने की वजह से है। क्योंकि जो हकीकत है, जो रास्ता है, जो जिंदगी है, वो हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। और जब वो आया और उसे कबूल नहीं किया गया, इस बात के लिए सजा दी जाएगी। क्योंकि दुनिया के गुनाह के लिए कफारा तो उसने दे दिया था, दुनिया के लिए जो सजा थी उसने वो खत्म कर दी थी, इंसानों का जो गुनाह था उसने रिमूव कर दिया था। पर अब की बार जो अगला गुनाह है वो उसे ना कबूल करने वाला है। पर जो कबूल कर चुके हैं, आइए मैं आपको गुड न्यूज देना चाहता हूं। यूहन्ना के इंजील के अंदर से 3 बाब और उसकी 18 नंबर आयत लिखे हैं, जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता। यह आपके लिए गुड न्यूज है। आप दुनिया में से किसी भी खित्ते में से इस बात को सुन रहे हो, अगर आप मेरे यीशु पर ईमान ले आएंगे, आप पर सजा का हुक्म नहीं है। आप मौत से निकलकर जिंदगी में आ चुके हो, आप सजा से निकलकर रिहा हो चुके हो। गलतियों 5वें बाब में लिखता है, मसीह ने हमें आजाद किया है, हमें सजा से आजाद कर दिया। और फिर लिखा है, जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका। अगर आपने मेरे मसीह को
कबूल नहीं किया, खुदा के बेटे यीशु को कबूल नहीं किया। और आगे लिखा है इसलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाया। 19 आयत कह रही है सजा के हुक्म का सबब ये है। सजा क्यों मिलने वाली है? सजा के हुक्म का सबब ये है कि नूर दुनिया में आया है। और बुजुर्ग हनूक ये कह रहे थे वहां नूर होगा, नूर आपके बीच में है, यीशु आपके दरमियान है। और लिखा है नूर दुनिया में आया और आदमियों ने तारीकी को नूर से ज्यादा पसंद किया, इसलिए कि उनके काम बुरे थे, क्योंकि जो कोई बदी करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है और नूर के पास नहीं आता। ऐसा ना हो कि उनके कामों पर मलामत की जाए, मगर जो सच्चाई पर अमल करता है वो नूर के पास आता है ताकि उसके काम जाहिर हो गए हों कि वो खुदा में किए गए हैं। आमीन। जो खुदावंद के अंदर है, जो नूर में है, जो रोशनी के अंदर है, उन पर सजा का हुक्म नहीं है, और जो इसको नहीं मानते उन पर सजा का हुक्म हो चुका है। अगली बात बताना चाहता हूं 5वें बाब के अंदर, यूहन्ना की इंजील 5वें बाब की 24 आयत के अंदर लिखा है मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है हमेशा की जिंदगी उसकी है और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया। आखिरी हवाला रोमियो 8वें बाब की पहली आयत लिखा है बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं। तो मेरे अजीजों उनकी अदालत नहीं होगी, क्योंकि उनकी अदालत हो चुकी है। उन्होंने मसीह को कबूल कर लिया है। वो जो लूसीफर के साथ उतरे थे और जो आज उसका साथ दे रहे हैं, उन पर सजा का हुक्म हो चुका, और जो मसीह यीशु में है वो सजा से बाहर निकल चुके, क्योंकि सजा यहां पर मिल रही है। लोग तकलीफों के अंदर, मुसीबतों के अंदर, मुश्किलात के अंदर, कर्जों के अंदर, लानतों के अंदर पड़े हुए हैं, और जो मसीह यीशु में आ जाता है उसके आंसू पूंछ दिए जाते हैं। वो हमेशा की जिंदगी के अंदर चला जाता है, वो दुखों से रिहा होकर खुशी के अंदर चला जाता है, क्योंकि खुदा का रूह इत्मीनान देता है, खुदा का रूह खुशी देता है, खुदा का रूहुल कुद्दस हमें इस जमीन से निकाल कर आसमान में ले जाता है, और वो हमें पुराने सिरे से तोड़कर नए सिरे के साथ जोड़ देता है। जब तक हम जमीन जिस्म से पैदा हुए थे, जिस्म थे, और जब रूह कुद्दस से पैदा हुए हम रूह बन गए हैं। हमारा पुराना सिरा खत्म, नए सिरे से शुरू। हम लानत से खत्म करके बरकत में जा चुके हैं, हम मौत से निकलकर जिंदगी में जा चुके हैं, हम सलामती के अंदर जा चुके हैं, हम खुशियों के अंदर जा चुके हैं, हम हमेशा की जिंदगी में जा चुके हैं। और यही गुड न्यूज़ आज मैं आपको देना चाहता हूँ। यही बुजुर्ग हनूक का पैगाम था जो उसने हमें दिया। सो आज इस पैगाम को यहाँ पर बंद करते हैं। अगर आपको मेरी बात समझ में आई है, हनूक की किताब का बाब आपको समझ में आया है, तो बुजुर्ग हनूक के लिए आप खुदा की शुक्रगुजारी करें कि उसने बहुत पहले हमें बता दिया था, और इस रूहुल कुद्दस के लिए जो आखिरी ज़माना में हमें हदायत दे रहा है, बाइबल से मिलाकर हमें बता रहा है। अगर बातें समझ में आ रही हैं तो इनको कबूल करें, बरकत पाएं, दूसरों के साथ शेयर करें। फिर से आएंगे एक नए पैगाम के साथ। तब तक के लिए हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। हमारे चैनल को भी ज़रूर आप इसके साथ बने रहिएगा, हमारे इस तरह के पैगामात, और इसके साथ हम एक दूसरा सिलसिला भी शुरू करने वाले हैं चंद दिनों के अंदर, सवाल जवाब के साथ। बहुत सारे मुश्किल सवाल जो लोगों ने किए या लोग करते हैं, या जिनके बारे में लोगों को इल्म नहीं है, हम खुदा की फजल से वो भी बहुत जल्द सिलसिला यूट्यूब पर अपलोड करेंगे, ताकि आप मुश्किल सवालों का जवाब वहां से हासिल कर सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जीते रहिए, खुदा में बढ़ते रहिए, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।